I gave you my heart. Hello everyone, I hope you all are fine. Please stay safe and healthy. Follow all rules to keep yourself safe. My dear students, this is my new video related to compound interest. In this video, I am going to discuss a method with you by which you can solve the compound interest questions easily and quickly. As you all know that compound interest is always been a part of your competitive examination like banking, SSC and many others. Such kind of competitions are always time bound. It means you people are having very less time to solve many questions, and compound interest is one of the question in that. So how to solve compound interest and how can we save few seconds for that, so that seconds can be utilized to solve the other sections of the paper. So if you have such kind of queries how to make your calculation easy in the case of compound interest, then this video is the perfect answer. So please watch this video and then you will be able to get your answer for compound interest very quickly. So let's see. Generally, actually you know very well that traditionally we know the formula for the compound interest, that if we know the principal, we know the rate of interest and we know the time, then our formula is amount equals to principal 1 plus r upon 100 power n, where n is the time, r is the rate of interest, p is the principal and a is amount. And when we calculate interest, we apply amount minus principal. So this is our traditional method. This formula is very easy to apply, but the problem occurs because actually the calculations are very complicated. So we don't have much time to waste on the calculation. We know the method, but the problem is with the calculation. So the method that I am going to tell you, it is going to make your calculation definitely easy. So what is that approach? What is that alternative method? Just see. So for that, one thing that you have to focus on is कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो कि एक जैसे फॉर एग्जांपल हम ईयरली इंटरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो जो हर ईयर एक सा ही रहेगा. अगर 10% लग रहा है तो 10% इस साल लगेगा, 10% नेक्स्ट ईयर भी लगेगा. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है कंपाउंड में चेंज होता जाता है, क्योंकि अभी जैसे लगेगा तो वो साल के अंत में क्या होगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होगा, तो हमारा सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो उस नए अमाउंट पे लगेगा. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है. तो इस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को इजी बनाने का क्या मेथड है, वो हम टेक्निक देखते हैं. देखिए आपको करना क्या है, बहुत इजी टेक्निक है. हमने बहुत इजी कैलकुलेशंस भी लिए अभी समझाने के लिए. रुपीस हमारा प्रिंसिपल जो है 1000 रुपीस है. Rate of interest is 10% and time is 3 years. Now how to solve this question technically means a shortcut method. तो हमने क्या करा, we have taken these 3 arrows. पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं. First of all we are going to calculate the interest after 2 years then 3 years. तो हमने क्या करा, पहले 10% फिर 10%, अब 10 का 10% यानी 10 into 10 upon 100. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 will be cancelled with zeros, so we will get only 1. Now you add all these 3 digits, 10 plus 10 plus 1. So what will you get? 21%. So after 2 years क्या आया हमारे पास रिजल्ट, 21%. तो ये आपकी क्या है, दिस इज योर स्टेप 1. जो भी आपको इंटरेस्ट दिया जाए आपको क्या करना है, उसको 2 बार रिपीट करना है, तीसरी बार में उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 लिखना है, और तीनों जो हमारी डिजिट्स आएंगी उनको आपको ऐड करके लिख देना है. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, एज यू गॉट 21, तो अब आपको क्या करना है, पहले नीचे एक एरो के 21, फिर क्योंकि 10% था तो 10%, अब 21 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 21/10 यानी 2.1 बचा. अब इन तीनों को हमने क्या करा, ऐड कर दिया. 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा, 33.1.
केवल इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। अब आपके पास कुछ भी करने को नहीं है। क्या करना है, 33.1% ऑफ द प्रिंसिपल निकालना है। दैट इज वेरी इजी। इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 10। तो आपका आंसर क्या आ गया, 331। दैट इज योर आंसर। सो अगर आप इस मेथड को प्रैक्टिस करते हो देन यू विल फील that this method is surely going to save few seconds of yours. अदरवाइज जनरली जब हम कोई मेथड पढ़ते हैं तो हमें लगता है नहीं ये तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन जब आप इस मेथड को प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके कुछ सेकंड्स ज़रूर सेव होंगे, आई गारंटी इट। तो आप प्लीज़ इसको पहले सीखिए और इसको बहुत प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब इसी का हम लोगों ने क्या करा, एक और एग्जाम्पल लिया कि अगर टाइम को हम 4 ईयर्स कर दें, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में ज़्यादातर आपने देखा होगा 3-4 में ही घूमता है क्वेश्चन। तो अगर 4 ईयर्स टाइम आ जाए तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप विल बी सेम, यानी पहले 2 बार रिपीट किया, फिर 10 × 10/100 करा, आंसर क्या आ गया 21। फर्स्ट स्टेप वही करनी है। अब सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा टाइम क्या हो गया है, 4 ईयर्स हो गया है, यानी 2 ईयर्स के लिए क्या आ रहा था 21, तो यहाँ पे कितनी है 4, तो हमारे क्या हो जाएगा 21 और फिर 21 × 21 डिवाइडेड बाई 100। तो 21 × 21 क्या होता है 441। इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4.41। तो ये हमने तीनों को ऐड कर दिया, यू विल गेट 46.41। नाउ 46.41% ऑफ 1000, so you will get 464.1 because 10 will be left, so 46.41 into 10 will give you 464.1. So that is your answer. So again you can see, otherwise if you are going to solve it by traditional method power 4, it's very difficult to solve. तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब देखो इसमें क्या करा हम लोगों ने, आपको लग रहा होगा 10% इंटरेस्ट है तो बहुत ईजी है, तो हमने इंटरेस्ट को चेंज कर दिया, 12% ले लिया। टाइम 3 ईयर्स है, मेथड वही है, आपने क्या करा, इंटरेस्ट क्या है 12, तो 12 रिपीट करा, फिर 12 × 12 डिवाइडेड बाई 100। 12 × 12 क्या होता है 144। इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड बाई 100 वी विल गेट 1.44। सो इनको ऐड करने पर क्या मिला 25.44। अब टाइम कितना है 3 ईयर्स, तो हमारी सेकंड स्टेप मेरे ख्याल से आपको पता होगी क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे 25.44 फर्स्ट एरो के नीचे, सेकंड क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या था 12 लिख लिया। अब 25.44 × 12 डिवाइड बाई 100। केवल ये मल्टीप्लिकेशन इसमें एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको शायद करनी है, अदरवाइज कुछ भी टफ नहीं है। तो ये कैलकुलेशन क्या आती है 305.28। इसको भी हमने किससे डिवाइड कर दिया 100 से, तो वी विल गेट 3.0528। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला 40.4928%। अब हमें करना क्या है, केवल दिस परसेंट ऑफ 1000 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिला 404.928। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर इज। तो अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करते हो, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप कोई वीडियो सुनो तुरंत की तुरंत पेन और कॉपी लेकर बैठो एंड यू प्रैक्टिस अलोंग विद मी, एंड आफ्टर दैट यू गिव योरसेल्फ सो मेनी क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करने के बाद बाय दिस मेथड आपको लगेगा कि शायद डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और कहीं कंपटीशन में अगर आपके 5 सेकंड्स भी बचते हैं तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन और प्रैक्टिस करिए इस वीडियो के साथ और अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड कीप योरसेल्फ सेफ। ओके, आपको क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification, and please share, subscribe and like my channel. Okay, so stay healthy and stay safe.